Major General Gajendra Singh Chandil, how are you feeling over here, sir? I'm feeling very good and this place is giving a lot of positive vibes. Yeah. And happy to be interacting with you. Hopeful to have a very fruitful discussion. Same here, sir, same here. I mean, sitting in front of an army man, I can just imagine how it feels at whatever time you have served in the army. I just feel honored to be sitting in front of you, talking to you, and having you over here. So, let's start with the very first thing. Ki after passing out from the Indian Military Academy, you were posted straight to Nagaland and then served there for more than 3 years. Tell me from a perspective of a 21, 22 years old, कि जो बच्चा अभी अभी आर्मी से निकला एंड स्ट्रेट गेटिंग पोस्टेड टू नागालैंड, how did it feel for you? What was the experience over there? The experience was very good, and as far as missing my family is concerned, I am from a Sainik school, and many of my colleagues, they are boarders. और जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी काफ़ी यंग एज से रेजिमेंटल सेंटर से ट्रेनिंग लेते हैं. तो हम सब के लिए क्या है कि हमारी जो यूनिट है, हमारी रेजिमेंट है, इट इज़ लाइक ए फैमिली. एंड यू विल फाइंड दैट यूनिट्स के अंदर हम लोग सारे फेस्टिवल्स, सारे ऑल इवेंट्स वी आर सेलिब्रेटिंग टुगेदर. सो इट हैपन्स बिकॉज हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. So for us, actually, for me, going to Nagaland or any other place with my unit was like going with my family. Didn't make any difference to me. Right. So that is how it is. मतलब वहीं पे एक छोटी सी फैमिली बन जाती है, उन्हीं के बीच सब खुश रहना सीख लेते हैं. That's right. So sir, जब आप पोस्ट हुए थे वहाँ पे, so how were you making the communication from your place to the? Yeah, that was in earlier days we didn't have mobiles. In fact, we didn't have even any STD lines also. Right. So हम लोगों के यहाँ उन दोनों एक फोर्सेस लेटर होता था. अच्छा. तो एक आर्मी में रेड कलर का एनवलप होता था, एक ग्रीन कलर का होता था. उसमें हम अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते थे. अच्छा. और उसको फिर उसको सेंसर भी किया जाता था. वो सेंसर होता था कहीं पर, एंड उसके बाद में वो हमारी फैमिलीज़ को मिलता था. तो कई बार तो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था. एक बार तो मैं आई रिमेंबर दैट आई वेंट होम आफ्टर 13 months. एंड तो दैट वाज द नॉर्मल, दोज डेज दैट वाज द वे लाइफ वाज इन द आर्मी. राइट. सर, ये रेड और ग्रीन में डिफरेंस क्या रहता है? उसका क्या होता था कि एक का सेंसर यूनिट में होता था. हाँ. और जो दूसरे का सेंसरिंग होता था वो बेस पोस्ट ऑफिस में होता था. यू वांटेड टू राइट सम प्राइवेट थिंग्स, सो वो आप आई थिंक ग्रीन वाले में जो है वो आप लिखते थे. अच्छा. सो वो यूनिट में उसका सेंसर नहीं होता था, उसका बाहर सेंसर होता था. सो दैट वाज द डिफरेंस. राइट. ताकि यूनिट के लोगों को ना, हाँ, कि आपकी इफ यू वांटेड टू कीप समथिंग वेरी पर्सनल और प्राइवेट, समथिंग लाइक दैट, इफ आई रिकॉल करेक्टली. हाँ. सर, वेयर डिड यू मीट योर वाइफ? That's very interesting question. We met in Shimla. Ours is actually arranged marriage. Arranged come, you can also say love marriage. But so we met in Shimla. Okay. When I was a young captain, we met in 1990 January. Now, of course, we are completing 34 years of marriage now. Oh wow, sir, it's great to hear that. So what happened in Shimla? Where did you meet her? What happened after that? Yeah, that's a long story. So we met in because we met in in Shimla. There's a very nice club called Gaties on the Mall Road. Okay. So we met there and we liked each other, and thereafter we had a period of courtship for 1 year. Okay. And then got married in not even 1 year, I think 6 to 8 months, and then we got married in June 1990. After that, our unit again moved back to Arunachal Pradesh. Okay. So after 6 months, I left her with my parents, and then I went to field, and that is how it was. Wow, it feels like a great story. Shimla, right? Okay, sir. Moving on to the next thing. Yeah. Whenever we talk about the armed forces or the army itself, we usually just hear about the physical fitness. We never hear about the academic training or intellectual growth. From some of my friends, जिनके parents already army में हैं, I got to know that there are a lot of theoretical courses. मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में आप comment करें, जैसे history हो गया, geopolitics हो गया, HRM हो गया,
बस उस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो आप मेरे को। एक्चुअली क्या है कि मैंने भी बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी मैंने ये सोचा था कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट आई वॉज सरप्राइज। मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, और लाइक मैनी ऑफ माई अदर फ्रेंड्स मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना PhD पूरा किया है। सो जब हमने NDA ज्वाइन किया तो NDA में हमारे को जो डिग्री मिलता है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलता है। एंड यू आर पुट थ्रू वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक्चुअली न्यू सब्जेक्ट्स ऑल्सो, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लाइक military geography, geopolitics. So we were also, taught a foreign language. I learnt Persian, to speak. Right. So NDA से जो ये पढ़ाई का जर्नी शुरू हुआ, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ एक्चुअली। उसके बाद में जैसे कि मैंने स्टाफ कॉलेज किया, 1 साल का कोर्स होता है, उसी दौरान हमने MSc डिफेंस स्टडीज़ में किया। उसके बाद जो है हमारा आर्मी का एक साल का और कोर्स होता है, हायर कमांड कोर्स बोलते हैं उसको करते हुए मैंने अपनी डिफेंस स्टडीज़ में MPhil किया। एंड देन 2014 आई डिड अनदर MPhil। सो आर्मी में देयर इज़ नो चॉइस बट टू स्टडी, because there are a lot of changes happening in the modern warfare, and you have to remain always updated. And it is not only updation in the military technology, but also you have to understand the politics, you have to understand geopolitics, you have to understand what is happening in your neighborhood. अभी हम बैठे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, और ईरान और इज़राइल के बीच में क्या हो रहा है। तभी हम हमारी आर्मी को हम एक्चुअली सही तरीके से किसी भी चुनौती के लिए तैयार रख सकते हैं। Definitely, that is how it is. So academics is a very important part of army. And in fact the concept of scholar soldier, every soldier has to be a scholar. Without academics, without scholarly leanings, you cannot become a good leader. Right. Definitely, sir. I mean, ये मुझे पहली बार पता चला है कि कि एक सोल्जर को भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी टफनेस, फिजिकल टफनेस तो ऑब्वियसली आर्मी इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग यू कैन एवर डू, बट मेंटली आई डिडंट नो दैट. And as people say, कि learning never stop, irrespective of what field are you in and what age are you in. I agree. Right. So, okay, talking about Russia and Ukraine, people often say कि India has taken a very, not a very positive side or negative side. India has just went to the middle way. कि ना हम उसको support करेंगे ना इसको support करेंगे. If you were in the place of some high officer ranking, okay, just keep it, casually, just asking. If you were in that higher position and where you'd have to make decision about India कि किस साइड रहना चाहिए, यूरोपियन नेशन को सपोर्ट करो या फिर रशिया का साइड चूज करो, व्हाट वुड यू वुड हैव डन और उसके पीछे रीज़न क्या होता? देखिए, इट इज़ वी मस्ट रियलाइज दैट एवरी कंट्री मस्ट परस्यू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट. हमारे को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें काम करना चाहिए. सो तो हमारी गवर्नमेंट का जो भी इसमें जो स्टैंड है उसके साथ मैं टोटली उसकी सपोर्ट करता हूँ. नॉट ओनली विद रशिया एंड यूक्रेन बट ऑल्सो देयर स्टैंड्स इन द पैलेस्टीनियन एंड इजरायली कॉन्फ्लिक्ट. Because ultimately for what matters to us is our Indian national interests. Right. So I think government is following a very good policy in Russia, and this path is absolutely correct path that they are following. Okay, but I get to hear in the news itself that US or the European nations blame India कि आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो थ्रू परचेसिंग देयर ऑयल. ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट में है कि हमें सस्ते में मिल रहा है, दे आर आल्सो गेटिंग सम मनी आउट ऑफ अस एंड हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर एटलीस्ट एक स्टांस लिया है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट देखे, तो डोंट यू थिंक अगर एक चॉइस कर रहे हैं तो दूसरे के वो चॉइस अगेंस्ट ही जाएगी? जैसे अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये पाथ नहीं लूँगा, अगर मैं रशिया को प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई चीज़ तो मैं उनको नहीं कर रहा हूँ जो सफ़र कर रहे हैं. But we are also not against Ukraine. We are also cooperating with West in many ways. We are trading with the USA. We are trading with the entire European Union. So उसमें I don't think इंडिया की जो अप्रोच है बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी pragmatic अप्रोच है. Right. Yeah. So there is one can't find any fault in that. And our foreign minister has actually many times clarified our position in many international forums.
So I totally stand with him on this account. How do you like Mr. Jaishankar? He's very good. I like him. Yeah. Yes. Even I like him. There's this thing going on internet that he's a very savage foreign minister. Do you understand the terminology savage? Smart, cool, casual. You see, what happens is, if you ask me, he's more like a general Okay. than a diplomat. Right. So maybe that part I agree. So he just says what he feels like saying. And at times in diplomacy, it may not be considered very diplomatic. So, Yeah. But he, whatever he says, he's got his facts and figures right, Definitely. and he speaks well, and you can't point a finger at him. That's true. That's true. I mean, he has, made people quiet in the press conference. The foreign news reporters who had asked him some foolish questions, and he just the short press and best of the answers he has chosen and given it to them. Yeah, that's right. Yeah. I think you have to grant him that. True. True. You have to grant him that. Moving on to the next thing, leadership is a critical aspect of a military service. What qualities do you believe are essential for effective leadership in the army, as you're a major general yourself? And how do these qualities translate to leadership in other domains such as business or government per se? Actually, leadership मेरा favorite subject है. Okay. एंड ये मेरा ओपिनियन है कि लीडरशिप जो है वो ह्यूमन सोसाइटी की एक फंडामेंटल प्रोसेस है. Okay. और अच्छी या बुरी लीडरशिप ही सोसाइटी को या तो प्रोग्रेस करवाती है या नीचे की तरफ लेके जा सकती है. That's true. So therefore, leadership is very, very important. We all must understand it. And second thing is that everyone is a leader in his own right. Be it a general, be it a soldier, be it the liftman or the security person who is standing down below. Because वो भी अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. हाँ. और वो अपनी फैमिली की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है. तो किसी भी इंसान के पास में लीडरशिप को एक्सरसाइज नहीं करने की ऑप्शन नहीं है. सबको जो है लीडरशिप एक्सरसाइज करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम लोग लीडरशिप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी कि हमें देनी चाहिए. Right. So here I would like to quote one of my favorite authors, Warren Bennis. He says that leadership is the most studied but least understood of the subjects in social sciences. Okay. He says that. लीडरशिप क्या है कि 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि लीडरशिप जो नेचुरल लीडर्स हैं. 20% लोग और होते हैं जिनको कि आप लीडरशिप सिखा सकते हो. Okay. तो 30% लोगों को आप लीडर्स बना सकते हो एज पर ए स्टडी. Yeah. स्टडी ऑल्सो सेज कि 85% कॉरपोरेट्स ये समझती हैं कि लीडरशिप की ट्रेनिंग होनी चाहिए. 85% समझती हैं. बट सिर्फ 5% हैं जो कि एक्चुअली लीडरशिप पे रिसोर्सेज डिप्लॉय करती हैं. Okay. So only 5% of corporates are actually paying attention towards leadership. Fortunately, in the army, defense forces, we give lot of premium to leadership. इसलिए हमारे यहाँ leadership के ऊपर में ज़्यादा focus थोड़ा सा होता है. Now coming to leadership तो बहुत बड़ा subject है. हाँ. तो leadership qualities का थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि leadership qualities कौन सी key qualities हैं leaders की. तो जो सबसे पहली चीज़ तो ये, आप अगर नेट पे देखो ना लीडरशिप क्वालिटी आप टाइप कर दो तो 1000 क्वालिटीज आ जाएंगी. 1000 आ जाएंगी. और आप कंफ्यूज हो जाओगे. और आई कैन टेल यू दैट 90% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस स्कूल्स और हूएवर दे आर कंफ्यूज्ड. इफ आई विल आस्क यू, shall I ask you? No, I will not ask you. You can ask me, definitely. So, but if you sift through that, if you study seriously, then you can zero the leadership qualities to 8 to 10 qualities. तो उसमें जैसे मैं सबसे पहली सेंटर में रखता हूँ सेल्फ अवेयरनेस को. सेल्फ अवेयरनेस जो है लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है. सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने बारे में पता हो खुद. हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ कि यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, यू शुड नो अबाउट योर लाइफ गोल्स, यू शुड नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो आदमी सेल्फ अवेयर होता है वो अपने को
अपनी जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको अपने वैल्यू सिस्टम के साथ में हार्मोनाइज कर सकता है। राइट, ओके, ठीक है, पॉसिबली यू आर अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, क्योंकि होगा क्या कि आप हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं, मगर आप काम करना चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट का। सो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आपको सही जगह पे ले आएगी कि यार ये काम मेरे लिए ठीक है नहीं है। राइट, जब आप जो एक लीडर सेल्फ अवेयर होता है, वो क्या होता है कि एक ऑनेस्ट होता है, ऑथेंटिक लीडर होता है। हाँ, उसके अंदर में जो है एम्पैथी होती है। सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। सो सेल्फ अवेयरनेस सेंटर में होती है। उसके बाद बाहर से पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। तीन पर्सनल क्वालिटीज़ को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। फर्स्ट इज ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी इज अबाउट लिविंग विद हाइएस्ट आइडियल्स ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सेकेंड क्वालिटी जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबिलिटी उसके साथ में। अच्छा, एक CEO जिनोम प्रोजेक्ट हुआ है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ये हुआ था। ओवर 50 years दे कैरिड आउट ए स्टडी एंड दे सेड कि व्हाट आर द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज ऑफ द CEOs। ओके, सो दे फाउंड रिलायबिलिटी इज वन ऑफ देम। Reliability. Okay. Reliability is a personal quality that means your ability to consistently and deliver in a timely manner. Right. तभी कोई रिलाय कर पाएगा आप। आपने बोला जनरल गजेंद्र आप 4 बजे यहाँ आइए। हाँ। It is my duty to be here at 4 o'clock. And you were there. You were also there. So I think you are reliable. I also try to be reliable. Yeah. So that is and the next quality, personal quality of a leader is that he has empathy. Empathy for his seniors, his colleagues, his subordinates. He cares, he respects people. Right. तो ये सेकंड लेयर मानता हूँ मैं। Okay. तीसरी लेयर की मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपके पास शायद टाइम कम होगा। नहीं, it's okay, we can तो go on. बट अदरवाइज 6 more qualities which I consider as the key qualities of a leader. इसमें एक होता है विजन। Vision. हर एक लीडर के पास विजन होना चाहिए, अदरवाइज आप में और फॉलोअर में कोई फर्क नहीं है। मोदी जी विजन दिखा रहे हैं ना एक कंट्री को कि 2047 में विकसित भारत बनाए, तो विजन है। कितना पूरा होगा वो मालूम नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, बट विजन तो है ना एक। Right. So vision और goal में difference क्या हुआ? गोल इज स्मॉलर, Okay. vision is bigger, Right. a bigger picture. So vision is that. Then the next quality of a leader is communication ability. Communication is just not about speaking. ये हम लोग सोचते हैं यार ये बड़ा अच्छा बोलता है, ये communicates well. That is not the thing. Communication is engaging with all stakeholders. Total engagement. Right. That is communication. So और communication भी जो है, ये भी जो है एक CEO जिनोम प्रोजेक्ट की सेकेंड क्वालिटी है ये। अच्छा। टू बिकम ए गुड CEO यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन एबिलिटी, बिकॉज जब आप कम्युनिकेशन करोगे तो आप अपना विजन को कम्युनिकेट कर पाओगे। जब आप अपने विजन को कम्युनिकेट कर पाओगे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको आपके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो आप वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? एंड फाइनली इट हेल्प्स यू इन टीम बिल्डिंग। Right. So this is the next advantage of good communication. Okay. और जो next quality जो मेरे हिसाब से बहुत ही important है और इसको मैं टॉप में मानता हूँ हमेशा, it is decision making. Decision making. Okay. Now this is also identified by the CEO Genome Project as one of the core qualities. अब ये तो चाहे जनरल हो चाहे CEO, किसी के अंदर भी डिसाइसिव होने की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। Right. क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज लाइक ए ट्रिगर पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से आपका प्लान ऑफ एक्शन शुरू होगा। अगर आप डिसीजन ही लोगे तो आप डिले कर दोगे हर एक चीज़ को। सो ये डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस है। और ऑल्सो इट इज़ सीन दैट पीपल हु आर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल डू नॉट नेसेसरली मेक गुड डिसीजंस, अच्छा, बट they are decisive. Okay. But they are decisive. Can you repeat it once over? Yeah. I didn't. Yeah. People who are successful, or who been effective, Okay. they may not necessarily take good decisions,
Okay. Their decisions can go wrong, हाँ. but they are effective decisions. They are very decisive. They are very decisive. That means they take timely decisions. Right. So time में decision ले लो, हो सकता है थोड़ा वो गलत भी हो जाए, कोई बात नहीं. That is what it means. And then there are few more qualities जिनको मैं थोड़ा सा प्रीमियम देता हूँ कि जो हमारा लीडर है उसके अंदर में पैशन होना चाहिए. कोई भी बात कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो उसके अंदर में पैशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, उसके अंदर में खुद मोटिवेशन होना चाहिए. Right. और एक और थोड़ी सी क्वालिटी जो लीडरशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अडेप्टेबिलिटी. Adaptability. अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये भी चौथा जो क्वालिटी है एज पर CEO जेनो प्रोजेक्ट ये है. अच्छा. क्योंकि लाइफ में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग. इन द आर्मी वी से दैट ऑपरेशनल प्लान्स आर द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर. Operation. जो भी आप प्लान बनाते हो सबसे पहले वो प्लान आपको चेंज करना पड़ता है. अच्छा. तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. Right. किसी CEO को या CEO को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी. जर्नल को ऑपरेशनल कंडीशंस के हिसाब से अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा. तो अडेप्टेबल जो नहीं होगा वो ख़त्म है. He cannot be a good leader. So this is how I'd like to summarize, leadership and leadership qualities. ये इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. नहीं डेफिनेटली सर. ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपने बोला ना 85% सिखाती तो है बट कभी लोग सीख पाते हैं. सर मुझे एक डाउट था इस चीज़ पे, लीडरशिप पे, कि जो नेचुरल लीडर्स होते हैं विद टाइम अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी प्रैक्टिस नहीं करें या फिर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उनकी भी ये स्किल कहीं ना कहीं दब सी जाती है. तो उसके लिए एक पर्सन क्या कर सकता है कि जो उसकी नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ थी पहले से उसको वो वापस से रीग्रोथ कर सके, ला सके अपने अंदर, वो कॉन्फिडेंस कैसे लाए वापस? हाँ. सो एक्चुअली आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट कि नेचुरल लीडर्स तो हमने बताया वैसे ही 10 हैं, 10% है. हाँ. 20% जो है दे हैव. सो मोर पीपल कैन एक्चुअली बिकम गुड लीडर्स. आई थिंक reading about it, practicing leadership and working on your weaknesses. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई वीकनेस है और लीडरशिप के आप कई बार होता है आपको लगता है आप डिसीजन नहीं ले पाते हो. बी डिसाइसिव. लोग तो ये डिसीजन नहीं लेते हैं कि अब यार चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, सवेरे पैंट कौन सी पहनूं, शर्ट कौन सी पहनूं, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं. तो अनलेस यू विल प्रैक्टिस लीडरशिप यू विल नॉट बिकम ए गुड लीडर. प्लीज ट्रेन and decide today that I want to be a good, effective leader. No one can stop you. Let me tell you that. Wow, sir, wow, definitely, sir. क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चन ना खुद पर्सनली आ रहे हैं तो मैं इसीलिए आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं. सर हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस टर्म सिग्मा मेल या फिर अल्फा मेल? Yes, I have heard of it. Yes. What do you believe what it is? I don't believe in this concept. Okay, and why? I don't believe in it because I believe in flat relations. Flat relations. I believe in flat hierarchies. You and me are interacting as equals. For respect, you can call me sir, क्योंकि Indian culture है वो different thing. But we are interacting as equals. Right. ठीक है? Because you have called me, so I may be talking more. But otherwise, I believe in flat relations. I don't believe in concept of one man as the boss of the pack. We are not animals. Right. There is a very interesting book I am reading these days, Courage to be Disliked. So इसमें एक The white and red book ना. It talks about Elderian psychology, which talks about this concept of flat relations. Okay. So मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी अल्फा मेल की तरह बिहेव किया है. Okay. और ठीक है मैं हो सकता है मतलब जोर से बोलता हूँ वो सब ठीक है, पर सब बोले, किसी को मना थोड़ी भी किया हमने. Right, सही बात है. सब बोले अपने एक्सरसाइज करें लीडरशिप को. सही बात. सबका अपना वो है, फील्ड है. और एक कमरे में 5 लीडर भी सर्वाइव कर सकते हैं. Okay. ऐसा नहीं है कि भाई सबका अपना अपना, सबको बहुत अपॉर्चुनिटी है लीडरशिप की. कोई ऐसा नहीं है कि भी एक ही लीडर रह सकता है, ऐसा नहीं है. ओके ओके. सर अगर सोसाइटी की बात करें आजकल के टाइम पे, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि फ्रॉम योर टाइम जहाँ पे नॉर्मल फोन्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं रहता था,
आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, एक लो लेवल आदमी से लेके एक हाई क्लास आदमी तक हो सकता है सेम फ़ोन हो, सेम टेक्नोलॉजी, सेम इंटरनेट, सब सेम सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हो। तो मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू योर सोसाइटी, हमारी आजकल की जनरेशन बहुत सेंटिमेंटल हो गई है, बहुत क्विक डिसीजन नहीं लगी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोचते भी नहीं है कि गलत है कि सही है। हाउ डू यू थिंक वी कैन गो बैक टू द टाइम, क्योंकि विद टाइम हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, बट एज अ सोसाइटी आई डोंट बिलीव कि नेचुरली, इमोशनली एंड कनेक्टिवली हम एक जैसे ग्रो कर रहे हैं। तो इमोशनली कैसे स्टेबल हो आप ने जो मेरा आई विल स्पीक टू यू ऑन वन सब्जेक्ट। ओके, सो क्योंकि ये भी मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है जो आपने बात किया कि यू स्पोक अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी, यू स्पोक अबाउट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किल्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किल्स। हम लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम आईटी से, आईएम से निकल सकते हैं और हम बहुत अच्छे, और हम हो सकता है वी मे बी गेटिंग वेरी गुड सैलरी पैकेजेस, बट वी मे नॉट बी सक्सेसफुल पीपल स्टिल, we may still be miserable failures in our life. It is quite possible. And I've seen this. I've seen this in my life कि many people, they are very good, they are very competent, they are highly educated, and they are successful also in some way, but they are not realizing their full potential. It is because they lack a lot of skills. तो लीडरशिप को तो छोड़ दिया, लीडरशिप को तो वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, बट इन एडिशन वो स्किल्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैं आजकल के बच्चों को, मैं कई बार जाता हूँ स्कूल्स में, बातचीत करता हूँ, तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार आपको स्किल्स सीखिए। पेरेंट्स को बोलता हूँ प्लीज़ टीच योर चिल्ड्रन सम स्किल्स। अब ये स्किल्स क्या हैं? सबसे पहली स्किल होती है आपकी बेसिक स्किल्स, कि जी आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको खाना पकाना आता है थोड़ा सा, आप सर्वाइवल अपना मोड पे रह सकते हैं, आपके पेरेंट्स चले गए, कोई घर में कोई है नहीं है, तो आप काम कर सकते हो, कोई आप कील ठोक सकते हो, कुछ कर सकते हो, दे आर बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड पहले जैसे कि मोबाइल को हैंडल करना, इट वाज टू बी स्किल्ड, बट नाउ इट इज़ ए नॉर्मल बेसिक स्किल सर्वाइवल के लिए चाहिए। दूसरा लेवल होता है स्किल्स का, होता है ऑक्यूपेशनल स्किल्स। So there's a camera person, he knows how to operate the camera, or there's a musician, he knows how to play his guitar, and there is a soldier, he knows how to fire. So you have to be good at your professional skills or occupational skills. Without that, you will not get even paid. Right. Then the third category of skills, as now we keep going up, more and more important skills keep coming up. Now there are personal skills. हाँ, पर्सनल। तो ये पर्सनल स्किल क्या है भाई? पर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्दी बॉडी एंड ए हेल्दी माइंड। उसके लिए पर्सनल स्किल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना तो स्कूल में ना माँ बाप आजकल पर्सनल स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं बच्चों की। हमारे टाइम में क्या होता था कि ऑटोमेटिकली ही पर्सनल स्किल लानी पड़ती थी, माँ बाप इतना ध्यान ही नहीं देते थे हमारी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा वैसे इतनी मीट नहीं होती थी कंपैरेटिवली। आजकल तो ड्रॉप ऑफ ए हैट, यू आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स आर रेडी टू गिव यू। सो पर्सनल स्किल्स में क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनल स्किल्स। एंगर मैनेजमेंट, आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको देखो स्ट्रेस में घूम रहा है कि मेरे को स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट, किसी के पास टाइम ही नहीं है। अच्छा टाइम, वो फिर एवरीवन इज रनिंग ऑल द टाइम, रोड रेज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सो दिस इज बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग आवरसेल्व्स वेल। सो दिस इज then the fourth category of skills is called the interpersonal skills. We are all human beings are social animals. हाँ. और अब आपको सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए और एक हैप्पी लाइफ को लीड करने के लिए आपके अंदर में कुछ ना कुछ ये इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, जिसमें कि कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट। कम्युनिकेशन इज, जब आपकी पर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, आपने अपने को ठीक ठाक से देखभाल किया है, आप में एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट को आपने ठीक से कंट्रोल किया है, तो फिर आप इंटरपर्सनल स्किल्स में आप कम्युनिकेशन में आएंगे। कम्युनिकेशन में आप लोगों से प्यार से बात करेंगे, आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होंगी, आपके अंदर में एम्पैथी होगी। आप सोचेंगे कि यार ये आदमी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सही। गुस्सा करने से पहले आप ये सोचोगे कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है। इंटरपर्सनल स्किल्स में नेगोशिएशन की स्किल्स होती हैं।
ओके कंसेंसस बिल्डिंग होती है। आजकल कितने लोग हैं जो कंसेंसस बिल्ड कर पाते हैं? अपने बच्चे के साथ ही नहीं हम लोग कंसेंसस बिल्ड कर पाते हैं। सो दीज आर द स्किल्स विच विल एक्चुअली कैरी पीपल ए वेरी लॉन्ग वे। एंड लास्ट एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्किल्स is called the thinking skills. Thinking skills are the skills which are related to problem solving, critical thinking. Critical thinking का एक process है, out of the box thinking, lateral thinking आप लोग तो सब जानते ही होंगे, divergent thinking, convergent thinking. So all this thinking is the fifth category of skills. So आजकल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग एम्प्लॉयज़ को और सीनियर मैनेजर्स को भी इन स्किल्स के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, वरना आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं आप बना सकते हो। ओके दैट इज व्हाट right. So it all starts with emotional, interpersonal, and what did you say, thinking skills? Yeah, thinking skills. Yes, definitely, sir. Okay, sir. I had this interesting question going on in my head. Ki a lot of times, you know, in corporates, we notice that employees develop a very casual attitude. There's no company loyalty. They just work for the sake of working and burn company money and resources without a second thought. Okay. Employees have become rather laid back. However, the army wouldn't work this, मतलब इतना casually army नहीं work करती. And so, how does the army keep this morale up and keep people in guard so that this level of patriotism and seriousness is maintained? देखिए, मोरल इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी इफेक्टिव फाइटिंग यूनिट। Okay. क्योंकि मोराल के बिना तो जिस यूनिट का मोराल लो है तो वो तो लड़ाई तो कर ही नहीं सकती है। सही बात। तो इसलिए मोराल हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। तो देखिए, मोराल उसका ठीक रहता है सबसे पहले तो वी लुक आफ्टर आवर सोल्जर्स। Okay. We look after our soldiers in a manner that he feels part of the unit. He feels as part of the team कि मेरा ध्यान रखने वाले लोग हैं, मेरे सीनियर मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाएगा, माई फैमिली विल बी लुक्ड आफ्टर, दे ऑल नो इट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस हाउ एक्चुअली इनका अपने सोल्जर्स का मोरल हाई किया जा सकता है। देन वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटल सिस्टम। Okay. तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी इंडियन आर्मी की यूनिट्स को वेरियस रेजिमेंट्स में ग्रुप किया गया है। आप जैसे मैं गढ़वाल राइफल से हूँ, अच्छा। राजपुताना राइफल्स आपको मिलेगी, आपको जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गोरखास। सो ये वैसे ही आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इनका सबका एक बड़ा ही आयल से कि बहुत रिच रेजिमेंटल हिस्ट्री है। तो सोल्जर उससे भी उनका मोरल हाई रहता है कि मैं एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिट को बिलोंग करता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप विद प्राइड यू मस्ट बी सेइंग आई एम स्टडिंग इन मास्टर्स यूनियन एंड आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो इस टाइप का हमारे सोल्जर्स के अंदर में भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि वी आर द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल राइफल्स, वी आर द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। और हम कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि इंडियन आर्मी का या हमारी यूनिट का नाम खराब हो। आई थिंक दिस इज द मेन रीज़न। राइट। हमने गोरखास के बारे में तो बहुत सुना है। हमने गढ़वाल राइफल्स के बारे में मैं अभी पर्सनली पहली बार अभी सुन रहा हूँ। ओके। तो मतलब नथिंग टू टेक ऑफेंस है, नॉट एट ऑल, मेरी आर्मी की नॉलेज आपसे ही बढ़ रही है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कुछ रिच जो भी कल्चर हेरिटेज की आप बात करो, मेरे को एक बार उसकी बताओ थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। ओके, सो एक्चुअली इंडियन आर्मी जो है की जो यूनिट्स हैं, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट्स। आगे अभी विकिपीडिया आप खोल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ओल्डेस्ट यूनिट्स में इंडियन आर्मी की बहुत यूनिट्स का नाम आता है। अच्छा अच्छा। तो मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स कोई बहुत पुरानी रेजिमेंट तो नहीं है। हम लोग 1887 में हमारी फर्स्ट बटालियन रेज हुई थी। अच्छा। तो स्टिल वी हैव डन अबाउट 125 ईयर्स। सो बट हमारे से पुरानी रेजिमेंट्स है, जैसे कि मद्रास रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है। अच्छा। मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये बड़ी पुरानी रेजिमेंट्स में से हैं। और जो हमारी रेजिमेंट एक यूनिक रेजिमेंट है गढ़वाल राइफल्स। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि ये एक ऐसी रेजिमेंट है जो कि सबसे छोटे एरिया से इतनी बड़ी रेजिमेंट को दिया जाता है। एक रेजिमेंट के अंदर में 20 से 30 बटालियन होती हैं। अच्छा। तो हमारी एक मेजर रेजिमेंट है, और जैसे कि 5 डिस्ट्रिक्ट से इतने सोल्जर
प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गढ़वाल रीजन के लिए। दूसरा हमारा क्या है कि हमारी रेजिमेंट को फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा काम करने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से स्पेशल अवार्ड्स और खिताब मिले हुए हैं। अच्छा। जिनमें से एक खिताब हमें मिला है, हमारी रेजिमेंट इज़ द ओनली रेजिमेंट जिसको ब्रिटिशर्स ने रॉयल का टाइटल दिया था। इस जमाने में रॉयल बोलना तो खैर, हम लोग राइट साइड में अपना लैनियार्ड पहनते हैं, स्कारलेट रेड कलर की रस्सी पहनते हैं जिसको हम रॉयल रस्सी बोलते हैं। अच्छा। आर रेजिमेंट इज़ द ओनली रेजिमेंट विच हैज़ दिस प्रिविलेज ऑफ वेयरिंग दिस रॉयल रस्सी ऑन द राइट साइड ऑफ आवर शोल्डर्स। So it is something like that, yeah. Right. Great to hear that, sir. I can see why are you so much with gratitude and with so much of feeling proud. You can say that कि मैं गढ़वाल राइफल्स से belong करता हूँ because इतना rich heritage रहा है। While I'm talking about गढ़वाल राइफल्स, पर हमारे बाकी ऑफिसर्स हैं वो जिस भी रेजिमेंट के हैं, all regiments are good firstly, all regiments are good and they all feel pride in their अगर यहाँ आप 4 को आप बिठा दोगे ना तो लड़ाई हो सकती है कि नहीं माय रेजिमेंट इज बेटर। अच्छा। So that is how it is. ये डिस्कशन तो होता रहता होगा आप होता है, बहुत होता है। हाँ। बहुत होता है और इसमें बीच बीच में आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं कई बार। It's all right. Yeah, definitely, sir. So, in your extensive military career, you have served in various roles and in various environments. Could you share with us particularly challenging or memorable experience from your time in the army, how it influenced your approach to leadership? ऐसी तो बहुत सिचुएशंस आई हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत और क्रिटिकल सिचुएशंस भी बहुत आई हैं, बट जो लीडरशिप की अप्रोच और जो मैंने लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपको बताई थोड़ी देर पहले, हाँ, उसके लिए मेरा इन्फ्लुएंस जो है कि मैं जब यंग मेजर था, यंग तो नहीं था, 10-11 साल की सर्विस थी मेरी और मैं वेलिंगटन से स्टाफ कॉलेज करके अपनी यूनिट में पोस्टिंग आया था। तो हमारी यूनिट जो है वो नौशहरा बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी। अच्छा। और मेरे को कंपनी कमांडर बना के कंपनी में भेज दिया गया। हमारी कंपनी की बड़ी यूनिक एक सिचुएशन थी कि इट वाज डोमिनेटेड बाय द पाकिस्तानी पोस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस। ओके। सो डोमिनेटेड मीन्स कि वो हाइट पे थे, हम लोग नीचे वैली में थे, तो वो आसानी से हमारे ऊपर में फायरिंग कर सकते थे। और तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मैंने ये देखा कि हमारी 3-4 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि इतनी फायरिंग होती थी कि जैसे मेरी अपनी बंकर थी उसके 3 डायरेक्शन से फायरिंग होती थी उसमें, और मैं सिर भी नहीं निकाल सकता था कभी। तो हमारे को रिटेलिएट करने में काफ़ी मुश्किल होती थी। तो कई बार मेरे को खुद अपनी हैवी मशीन गन की बंकर में जाके मैं खुद अपने आप फायर करता था और अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करता था और अपने डर को कंट्रोल करके किस तरीके से मैं वो काम करता था, क्योंकि जिस बंकर से हम फायर करते थे उसमें इतनी गोलियां आके लगती थी कि जैसे आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। वो तो बहुत हमने पत्थर और कंक्रीट आगे रखी हुई होती थी इसलिए उसमें, मगर जिस लूप होल से आप फायर कर रहे हैं उसमें से गोली अंदर आ सकती है बाई चांस, क्योंकि उसके आसपास लग रही हैं। राइट। तो इस प्रकार की सिचुएशन होती थी। दूसरा क्या होता था वहाँ पर कि मिलिटेंट्स के क्रॉस करने का खतरा रहता था, तो ऑलमोस्ट पूरी कंपनी हमारी रात को एम्बुश लगा के बैठी रहती थी। अच्छा अच्छा। अब जवान रात को सो ना जाए कहीं या थके हुए जवान होते हैं, तो मेरे को भी अपने आप ऑलमोस्ट पूरी रात जागे हुए रहना पड़ता था। और मौसम भी बहुत ख़राब था वहाँ का, और गर्मियों में इतनी गर्मी होती थी, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, और हमारे बंकर्स में बिच्छू नॉर्मल घूमते रहते थे। तो इस प्रकार की लाइफ थी। तो वहाँ पर मैंने कई चीज़ें रियलाइज़ की। एक तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई अगर आपने लीड करना है कभी भी, तो लीड आप कर पाओगे पर्सनल एग्जाम्पल से। अच्छा। और कोई तरीका नहीं है। कंपनी कमांडर कमरे में सो रहा है तो आपके जवान एम्बुश नहीं लगाएंगे, कंपनी कमांडर को साथ में बैठना पड़ेगा। तो तब जाके, तो पर्सनल एग्जाम्पल, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ फिजिकल करेज, यू हैव टू हैव मोरल करेज, यू हैव टू हैव ऑनेस्टी, यू हैव टू इंटेग्रिटी। आपको अपने जवानों का ध्यान रखना है, उनके लिए एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स मैंने वहाँ से सीखे एक्चुअली। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। डेफिनेटली सर, आई मीन द हार्डशिप्स यू हैव बीन थ्रू, मैं समझ सकता हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन रही होंगी जहाँ पे आपने काम किया होगा। एक नॉर्मल इंसेक्ट आज हम देख लेते हैं तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, और आप उनके बीच रहे हो ताकि इंडिया सेफ रहे, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग एंड ग्रेट टू हियर दैट सर फ्रॉम यू। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Indian Army has a rich tradition of valor and sacrifice. How do you think this tradition shapes the ethos and culture of the army? And what role does it play in motivating soldiers to perform their duties with dedication and courage? Actually, army is all about honor, valor, tradition, ethos. ये तो आर्मी के Principles हैं. these are the again cornerstones. और जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारी हिस्ट्री से, मिलिट्री हिस्ट्री से, हमारी रेजिमेंट की हिस्ट्री से, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, बहादुरी के काम किए हैं, उनसे बहुत मोटिवेशन लेते हैं. Right. और उसमें जो ब्रेवरी की कई बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस भी हैं आर्मी में, जिनको जैसे कि हमारे यहाँ पर कई यूनिट्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. जैसे कि एक यूनिट का नाम है काली पांचवी. अच्छा. तो आई थिंक फर्स्ट मराठा इज नोन एज काली पांचवी. काली पांचवी. So they take so much pride in this name. I will not go into the history as to why they are known as Kali Panchvi, but they are known as Kali Panchvi. So there is a battalion called 4-6 जिसका नाम है सारागढ़ी बटालियन. सारागढ़ी तो आपने सुना होगा. हाँ, सुना है. सारागढ़ी अक्षय कुमार की मूवी बनी थी. तो वो बटालियन तब से उनकी हिस्ट्री है. अच्छा. 4-6 की तो so there is a battalion known as Kali Chindi. So these are और many such names actually. हर एक रेजिमेंट में आपको कोई ना कोई यूनिट जिसका कि एक स्पेसिफिक नाम होगा, वो किसी ऑपरेशन के साथ में लिंक्ड होगा. तो वो जवान अपने को बोलेगा कि मैं काली पांचवी से हूँ या मैं सारागढ़ी बटालियन से हूँ. तो ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है. फिर साथ ही साथ हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव्स. कई यूनिट्स को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बोला जाता है. जैसे आपने इनको 8 जैकलाई है, दैट इज़ ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव. उनको जैसे कि उनको परमवीर चक्र, 2 परमवीर चक्र मिले तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव हो जाएगा. 14 जैकरेव आई थिंक इज ए ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव यूनिट. सो देयर आर मेनी लाइक दैट. सो उसका बहुत प्राइड का फैक्टर जो है उनके अंदर में आता है. फिर हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जैसे कि वी हैव वॉर क्राइज. सो जैसे मेरी रेजिमेंट की वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय. वी आर रेजिमेंटल डेटी. हर एक रेजिमेंट का एक डेटी होता है. सो जैसे मेरी रेजिमेंट का डेटी जो है इट इज़ लॉर्ड बद्री विशाल, बद्रीनाथ भगवान. तो हम लोग उनका नारा लेके लड़ाई में जाते हैं. अच्छा. तो जैसे राजपुताना राइफल्स है वो रामचंद्र भगवान का नारा लगाते हैं. तो इस प्रकार के सबके रेजिमेंटल डेटीज़ हैं और सबके अपने रेजिमेंटल का नारा है. अच्छा. तो जैसे जाट्स का नारा है जाट बलवान जय भगवान. तो अच्छा. ये बोलते हैं. सो सबका अपना. सो इन चीज़ों के कारण भी एक यूनिटी और हमारा विश करने का सबका तरीका अलग अलग है. अच्छा. जैसे सिख ट्रूप्स हैं वो सत श्री अकाल बोलते हैं, गढ़वाल राइफल के जवान राम राम बोलते हैं. अब तो जय हिंद का कल्चर थोड़ा हो गया मगर अदरवाइज वो सब इस तरीके से बोलते हैं. सो दिस इज़ आई थिंक दीज ट्रेडिशंस मेक अस यूनिक. And Indian Army, I think I have served all over the world. I have seen best of the armies. But जो Indian Army का जो ऑफिसर मैन रिलेशन, जो Indian Army का जो कोहेशन है और जो Indian Army के अंदर में एस्पिरिट डी कोर और जो मोरल है वो किसी का नहीं है इतना. US आर्मी का भी नहीं है. उनको चाहे आप कुछ भी दे दीजिए, कैसा भी इक्विपमेंट दे दीजिए, मगर जो हमारे जवानों का मोरल है वो हाईएस्ट है. राइट. सर ऐसा कई बार होता रहता है कि दूसरी कंट्री से सोल्जर्स इंडिया में आके ट्रेन करते हैं, इंडिया के सोल्जर्स बाहर आके ट्रेन करते हैं. वो ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें दूसरी कंट्री जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है? इज़ इट बिकॉज ऑफ द टेरेन्स या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस एरियाज कि इस वजह से, ताकि सपोज मैं अगर सपोज पाकिस्तान में जा रहा हूँ, इफ़ आई वांट टू फाइट विद दोज काइंड्स ऑफ सोल्जर्स, तो ऑब्वियसली हमसे थोड़ा डिफरेंट होंगे. टू एक्सपीरियंस द डायनेमिक्स इस वजह से जाके प्रैक्टिस करते हैं इधर उधर. नहीं, एक्चुअली जो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफेंस डिप्लोमेसी ऑल्सो. अच्छा. तो जो डिफेंस डिप्लोमेसी में क्या है कि जो फ्रेंडली आर्मीज हैं दे ट्रेन विद ईच अदर. राइट. दे ऑपरेट विद ईच अदर एंड दे ट्रेन विद ईच अदर. इंडियन आर्मी डज नॉट ऑपरेट विद एनीवन एक्चुअली other than peacekeeping operations under the flag of the United Nations. Okay. But it does train with friendly countries. Now, we also train with China. We have because वो एक डिफेंस डिप्लोमेसी का टूल है.
अच्छा, अगर आप इकट्ठे ट्रेन करेंगे तो आपके रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सही बात. So that is the reason why we train with each other. Primarily as a, I think, as a defense diplomacy that we train with each other. Right. Yeah. So back in few years, we saw a lot of conflict between India-China border. What was that about? And उस पे कैसे reaction होना चाहिए था real में? क्योंकि we see a lot of, you know, वो काफ़ी सारे Chinese soldiers on the border line of India. So उस पे India का क्या reaction होना चाहिए था? Because they were crossing borders, they were coming into our boundary, and you know, काफ़ी सारा conflict चल रहा था. So what is it? Yeah. Actually, इंडो चाइना बॉर्डर का जो इशू है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है. अच्छा. सो जो मीडिया में दिखाई देता है और जो आपको यूट्यूब वीडियोस में दिखाई देता है उसमें पूरी रियलिटी नहीं नज़र में आती है. ओके. बट आई वुड, ये तो क्लियर है कि हमारा बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है काफ़ी. हाँ. पूरा का पूरा बॉर्डर. आवर बॉर्डर इज़ नियरली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3,410 किलोमीटर्स. It is called line of actual control. It is divided into 3 parts. वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला है, सेंट्रल सेक्टर जो कि उत्तराखंड और हिमाचल वाला है, और ईस्टर्न सेक्टर जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का है. तो सारे एरियाज़ में देर आर डिफरेंसेस इन आर परसेप्शन ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर. सो उसके कारण क्या है कि हमारी बीच में छुटपुट लड़ाई होती रहती है. बट इट इज़ सफाइस टू टेल यू हेयर, एज पर इन माई ओपिनियन, फर्स्टली जब वो कुछ करते हैं तो हमारे सोल्जर्स भी इक्वली रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा ही रिएक्ट करते होंगे, कम रिएक्ट नहीं करते हैं. सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है. और सो हमें ऐसी, और हम हर तरह से तैयार हैं. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमें किसी प्रकार से कोई कंसर्न होने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है. बाकी ऑफ कोर्स डिफेंसेस आर नेवर फुल्ली प्रिपेयर्ड. हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और तैयारियां अपनी करते रहना चाहिए, बट ऐसा कोई इशू नहीं है. Okay, great to hear that, sir. Great to convince you about that. The next question is transitioning from your career in the military to civilian life can be challenging for many veterans. What advice would you offer to fellow veterans seeking to navigate the transition successfully, particularly in terms of leveraging their skills, experiences gained in the army? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ शुड ए आर्मी मैन ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिट्री टू सिविल. Should he bring his qualities and expertise, his values, ethos into the civil system, or he should become like them? So ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो बट यू नो वहाँ से डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आते हैं. एक तो हमारे जैसे सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं. आई रिटायर्ड एट 58, मैनी रिटायर एट 60. सो उनके लिए तो मेरी एडवाइस ये है कि भाई enjoy your retired life. Right. And do community work and empower people, because it is payback time for us, frankly speaking. Definitely, sir. But जो younger lot है, for the younger lot, it is you know, my advice to them is, first, if you want to leave early. Okay. You should leave early, because leaving early then gives you an opportunity to actually do well outside also. And if you are planning to leave, then it is better that you start preparing yourself well in time. Okay. You must pick up a qualification. You must decide कि मैंने करना क्या है. So you pick up that qualification and then work on it. Right. That is very important. Another thing which is very important for a person transiting is, पहले अपने finances ठीक रखोगे. Okay. Finances. So you should be mentally prepared कि you could hit a rough patch. You may not, things may not go as planned. So वो भी अपने financially थोड़ा सा अपने को strong रखो. और मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूँ आज की डेट में कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी गुड पेस एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो अगर कोई वेटरन्स आते हैं, वो ट्रांजिट करना चाहते हैं, तो दे शुड एक्चुअली they should get into their own business. They should start their own enterprise. Right. Because they are capable. Okay. They have skill sets to actually start their own business, their own work. That is what I advise everyone. And as you mentioned, every soldier is a scholar. So anyways, a scholar can obviously excel anyways into his life. Definitely. Absolutely. Yeah. So sir, tell me one thing.
कि obviously high level पे army pays well. Is it because of that कि people join army or is it because of patriotism feeling from that? From your personal experience you might have seen people around you जो कि दोनों reasons की वजह से आते होंगे या फिर जो भी reason रहता होगा. आप अपने मतलब अपने experience से बताओ कि क्या लगता है आपको? Actually, earlier people primarily came for the attraction of the job. So, No, not job, attraction of a way of life. yeah, Army was a way of life. right. It offered you adventure, it offered you opportunities to lead people, and so people came for that. And along with that, you got respect in the society, you got money, so people came for that. But yes, over a period of time, some people are just taking it as another job. Right. But number of those people is still very less. Very less. Very less. People are taking it as a way of life, I think. Okay, okay. Obviously sir, you're risking your life. There's और कोई जॉब है नहीं इंडिया में जिसमें आपको इतने पास से लाइफ थ्रेट को फेस करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली नंबर्स तो कम रहेंगे. बट हाँ, मेजर रीजन अकॉर्डिंग टू यू इज पेट्रियोटिज्म, राइट? Yes, that's right. Most of the people who are joining is because of patriotism, because of way of life it offers. तो वो और जगह में आप कुछ भी बन जाइए, हाँ, मगर जो एक आपने यंग डेज में जो एडवेंचर, मैं कई बार बोलता हूँ लोगों को कि आपको एक सबमरीन को आपने नेविगेट करना है, वो कितना चैलेंजिंग काम है, इंटरेस्टिंग काम हो सकता है. आप एक स्पेशल फोर्सेस की टीम को लीड कर रहे हैं. वो 10 आदमियों की टीम हो सकती है, 20 आदमियों की टीम हो सकती है, आप उसको लीड कर रहे हैं. आप टैंक के एक ट्रूप को लीड कर रहे हैं, 4 या 5 टैंक्स को आप असॉल्ट में लेके जा रहे हैं. हाँ. उस जैसा मजा किस चीज में है? Exactly. मतलब इट इज नॉट इन राइटिंग चेक्स, और इट इज नॉट इन, आई विल rather say कि this is something really unique. So many people come for way of life. So अगर आपको वापस से रीस्टार्ट करने को बोला जाए लाइफ, तो आप वापस से आर्मी में जाना पसंद करोगे? मैं 10 साल आर्मी में रहूँगा, एज आई टोल्ड, या 12 साल रहूँगा. यंग डेज में आई विल डू लॉट ऑफ एडवेंचर, लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटी. आई विल पिक अप ऑल गुड हैबिट्स फ्रॉम द आर्मी, एंड देन आई विल मे बी do social work, join politics, do my own work. Then, because I have imbibed all the good qualities of the army. Okay, right. Something like that I'd like to do. So, in the near future, it's just a personal question. Have you ever thought of joining a political party? No. Or do you support some? No, when I retired, I took a very conscious decision not to work and remain independent. Okay. If I will join a political party, I'll have to think like them, I'll have to talk like them. Now I'm an independent person. I don't work anywhere, I just do things on my own. So it was a conscious decision to remain independent, have my own ideas, own thoughts. So problem क्या है politician जैसे सोचने में, बोलने में, because of the जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स में, यू नो व्हाट आई मीन, उस वजह से कि मोरल्स और एथिक्स के अगेंस्ट रहेगा, इस वजह से, क्योंकि या फिर आर्मी ने सिखाया हुआ है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना. पॉलिटिक्स में तो डिसिप्लिन थोड़ा कम ही है, आई वुड से. तो नहीं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिक्स. ओके, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करोगे तो आप चेंज नहीं ला सकते हो. हम और आप तो बैठ के बातें कर रहे हैं ना. हाँ. चेंज लाने के लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा. राइट. मगर फॉर मी इट्स लेट इन लाइफ नाउ. अगर पॉलिटिक्स, मैंने बोला, अगर मेरे को पहले ये अपॉर्चुनिटी मिली होती तो मैं 10 साल आर्मी में जॉब करने के बाद में बाहर आता, हो सकता मैं पॉलिटिकल लाइफ ज्वाइन करता, कोई मूवमेंट में ज्वाइन करता जिससे कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाता, तो देन इट वाज फाइन. But now, after retiring at 58 and then trying to do things, I think I'm quite happy with what I'm doing now. I write, I speak, so I'm quite happy with that. Right. I was watching a podcast of Raj Shamani where he was interviewing an IAS officer, and he mentioned कि कोई भी politician अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी situation उसे कुछ decision लेने में मजबूर करती है जिसकी वजह से उसका आउटकम अच्छा बुरा हो सकता है, वो इंसान अच्छा बुरा नहीं हो सकता. आप कितने हद तक ये चीज़ मानते हो सर?
देखिए अच्छे बुरे तो लोग होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट ये मैं प्रिंसिपली नो वन वांट्स टू बी बैड, बेसिकली नो पर्सन वांट्स टू बी बैड। पर्सन की मतलब ऑब्वियसली अच्छे बुरे तो लोग होते हैं, अच्छे बुरे पॉलिटिशियन, क्योंकि एक अच्छा पॉलिटिशियन दो कंट्री की ग्रोथ पे ऑब्वियसली फोकस करेगा, बट एक बुरा पॉलिटिशियन ऑब्वियसली अपनी पार्टी और अपने ऊपर फोकस करेगा। नहीं, द प्रॉब्लम विद डेमोक्रेसी में क्या है कि यू हैव टू टेक पॉपुलिस्ट डिसीजंस। ओके, ये तो क्लियर है, पॉपुलिस्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कोई कितना भी कोई भी पॉलिटिशियन हो, ही कैन नॉट टेक हार्श डिसीजंस। आप अदरवाइज एंड इंडिया, वैसे भी इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, ए डाइवर्स कंट्री, और इसके अंदर में इट कैनॉट बी लाइक यूएसए और जापान सैनिटाइज्ड, और यहाँ थोड़ा सा क्योस भी रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हर एक चीज़ का एलिमेंट रहेगा, बैड और गुड का यहाँ पर एलिमेंट रहेगा। यहाँ गुड भी बहुत ज़्यादा है और बैड का एलिमेंट भी रहेगा, सो वी शुड नॉट गेट अनड्यूली वरिड। So there are good politicians, there are bad politicians, there are good IAS officers, bad IAS officers, there are also good army officers, there are also bad army officers. And in all walks of life, there are all sorts of people, you can't generalize. So I don't generalize. Anyone. It is better to, you know, focus on yourself and improve yourself. Right, That is right. what I feel. सर अभी जैसे आपने बोला कि बुरे आर्मी ऑफिसर्स या फिर आर्मी जनरल्स भी हो सकते हैं, एक बुरा आर्मी जनरल क्या करता है और एक अच्छा आर्मी जनरल क्या करता है? वेल यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव एक्चुअली नहीं, बुरे जर्नल्स तो ऐसे नहीं, आई विल नॉट से कि ऐसा कोई मेरी नज़र में तो कोई आया नहीं है, मूवीज़ में ही देखे हैं बुरे हमने। नहीं, हमने तो मूवीज़ में भी तो देखे ऐसे हैं। नहीं है कोई मेरे हिसाब से। आई थिंक ऑल आर गुड। समाज स्ट्रिक्ट। बेसिकली क्या है कि आर्मी में तो क्या है कि यू आर पुट थ्रू SSB, ओके, so almost you are put through psychological tests. You know, there was a time, एक बार NDA में IMA में एक कैडेट ने सुसाइड किया, IMA में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। So we were shocked. How can a person who has gone through the service selection board and training of National Defence Academy, he is so weak that he has committed suicide? राइट। So I feel कि normally army officer should be a balanced person with high morale, good self-esteem, तो almost आपको अच्छे ही मिलेंगे। आई हैव एटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल आर्मी पीपल, मतलब चाहे आप हो, चाहे एक जवान हो, चाहे एक आर्मी की प्रिपरेशन करता हुआ बंदा भी क्यों ना हो, मुझे उसके लिए बहुत एक रिस्पेक्ट है दी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक अच्छा काम करने जा रहा है। व्हाट आई फील कि आर्मी जैसे एक अच्छी डिसिप्लिन क्वालिटीज तो दे देती है लाइफ को, बट कुछ बुरी आदतें भी छोड़ के चली जाती है साथ साथ, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मूवीज़ में जैसे आपने बोला, हमने देखा है बुरे जर्नल, हमने मूवीज़ में ये भी देखा है कि आर्मी पीपल ड्रिंक बहुत करते हैं, दे माइट बी इन अ कैपेसिटी, बट यू नो द रियलिटी ऑफ सम पीपल माइट गो टू अप टू एन एक्सटेंट जो कि ज़्यादा पी के दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्फ। आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? If you see, I don't have data, but if you will see the consumption pattern of whiskey and other forms of liquor in our country, Yeah. army would not figure anywhere in the top. It is not. There are army officers these days hardly consume alcohol. Okay. They hardly smoke. They are very health conscious, and because they have to survive long, so they are health conscious, and so I don't think that this is not a matter of serious concern. Okay. It's a minor issue. Right. As we are coming to the end of the podcast, there's something I want to ask. Ki, as a retired Major General, what do you see as the most pressing challenges facing the Indian Army today? At what measures do you believe are necessary to address these challenges effectively in terms of politics, in terms of geopolitics, whatever it be? अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो मेरे हिसाब से एक तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो बहुत स्पीड पे चेंज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त पेस पे चेंज हो रहा है। सो अडेप्टिंग टू दिस चेंज इज़ समथिंग विच डिफेंस फोर्सेस
have to grapple with. They have to come to terms with that कि हम इतनी चेंज को कैसे अडाप्ट करें. पहले तो गिने गिनाए इक्विपमेंट होता था, अभी यू फाइंड सो मेनी काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट दैट इज ऑलरेडी कम इनटू द आर्मी. मतलब equipment like drones, like Okay. UAVs, Right. missile systems, and हाँ. so this change के साथ अडेप्ट करना आर्मी के लिए वो मेरे हिसाब से एक चैलेंज का इशू है. दूसरा इशू मेरे हिसाब से डिफेंस फोर्सेस के लिए, दे आर ऑल लिंक्ड ऑल्सो एक्चुअली, ऑल दीज इशूज, इज द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ओके. I am personally not happy with the pace of modernization. I feel modernization should be much faster. Much faster. Much faster. Okay. It should happen at a much faster pace. In India? Yes, in India, in the Or Indian in Army. terms of world? In terms of everything, whether be it changing our organizations, be it induction of new weapons, Right. न्यू इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज़. तो मॉडर्नाइजेशन का जो पेस है वो इंडियन आर्मी के लिए एक चैलेंज है, Right. बिकॉज फ्यूचर वॉर्स विल बी टेक्नोलॉजिकली इंटेंस वॉर्स. दे विल नॉट बी what happened in Doklam or what happened in 65, 71. They will be entirely technologically oriented wars. तीसरा मेरे को लग रहा है डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दिस इज रिगार्डिंग बजट. बजट से ही मॉडर्नाइजेशन लिंक्ड है एक्चुअली. अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप कुछ भी खरीद लो, आप 500 हेलीकॉप्टर खरीद लो, आप ये कर लो वो कर लो, बट योर बजट इज़ लिमिटेड. बजट का एक मैजिक फिगर है 2.5% ऑफ द GDP, which is universally kind of acceptable figure. तो वो इंडिया में हमारे को मिल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं मिल रहा है, बट आई थिंक वी नीड लिटिल मोर. Okay. Money required is little more. Right. And fourthly, the issue is of leadership development and thought change. जो है that is going to be a challenge, because I see in our context the politicians and the bureaucrats, they are not so well trained in the matters of strategy, tactics, and in military thought, and there is no effort to actually do that. I had written an article in The Week about two months back on the need for an Indian National Defence University, and we have so many colleges and so many institutions, they need to be put under one umbrella, जिससे कि हमारी ट्रेनिंग, हमारे लीडर्स जो हैं वो कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर के लिए अडेप्ट होके वहाँ से निकले. Okay. So that I consider as a challenge. Otherwise, we are doing very well, and I'm sure we are ready to face any challenge that will come across. So you started with कि इंडियन आर्मी को अडाप्ट करना चाहिए विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का लिंक्ड है बजट से, कि बजट में प्रॉब्लम है. एंड यू सेइंग कि लीडर्स के पास वो वाला थॉट प्रोसेस नहीं है, वो वाला थिंकिंग नहीं है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन लीडर्स, कि एक स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में ये लोग सोचते नहीं हैं. हाँ, तो मुझे लगता है कि सर, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको लाइफ रीस्टार्ट करनी होती तो आप आर्मी में जाते, एंड मे बी लेटर ऑन आफ्टर 10 to 12 years आप शायद से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते. डोंट यू थिंक वी नीड मोर लीडर्स लाइक यू, लाइक मोर आर्मी पीपल इन द पॉलिटिक्स इटसेल्फ, ताकि ये डिसीजंस लेने पे पॉलिटिशियंस मे बी उतने एजुकेटेड ना हो आजकल के टाइम पे, बट मेजर जनरल्स, स्कॉलर्स, आर्मी पीपल आर मोर एजुकेटेड एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियन, सो वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ उस चीज़ पे. No, our politicians are very competent in their job. They are. I have great regards for most of them. But as far as strategy is concerned, the defense related issues are concerned, it is better that we should have
while CDS is a welcome step, but CDS is not in the political hierarchy. He is still in the military bureaucratic setup. तो I totally agree with you कि हमारे को more veterans should come into politics. Right. And they should be given opportunities to use their experience in such like things like if you see China or if you even see USA, there was a time when almost all their senior ministers were veterans, even in USA, including their foreign secretary and their defense secretary and their national security advisors. They were all veterans during the Trump era. I'm not saying that, but at least some people need to be there right. to provide a perspective to the needs of the defense of the country. Right. So, more balanced perspective, बाकी ठीक है. Right. मतलब एक इंसाइट हमेशा होता है एक आर्मी, मुझे लगता है सबसे वेल इक्विप्ड विद करेक्ट माइंडसेट अगर एक रिटायर्ड मेजर जनरल है जैसे आप हो गए, एक आपके पास एक सिविलियन का भी पर्सपेक्टिव होगा कि इस सोसाइटी को मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, प्लस आपके पास एक डिप्लोमेटिक एज वेल एज जियो पॉलिटिकल व्यू भी होगा कि कहाँ वो चीज़ ज़रूरी भी है. तो मुझे लगता है दोनों पर्सपेक्टिव को साथ में रख के अगर हम देश की तरफ देखें तो हमें जैसे आपने बोला स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि अभी एक और जयशंकर सर की पॉडकास्ट थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारे लीडर सबसे ज़्यादा इन सब रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में फंसे हुए हैं. राम मंदिर हो गया, यहाँ पे मुस्लिम फसाद हो गए, हिंदू फसाद हो गए, यहाँ पे सिक्स ने ये राइट्स कर दिए, इन सब से बाहर आए और अगर एक वाइडर एस्पेक्ट में देखें कि देश की क्या हालत है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो देश के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है. अगर आप देश से बाहर ही नहीं देखोगे, बाहर की दुनिया, तो आपको देश ग्रोथ करते हुए दिखेगा ही नहीं. मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है. Actually, politicians have to fight elections. You see, democratic setup में fighting an election is a compulsion. और उसके लिए मेरे को नहीं पता है क्या क्या करना पड़ता है. मतलब I am being very honest. So if they are doing something, it is their compulsion. तो वो ठीक है. I think we'll avoid too much of political discussion because मेरे को ज़्यादा इसमें इतना knowledge भी नहीं है और मेरे को frankly speaking ज़्यादा interest भी नहीं है. Right. But I can speak on anything related to my experiences with the army. Right. But I've been very fortunate to work with because army में क्या है कि कहीं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आप काम कर रहे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो काफ़ी लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया है, तो एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड. Right. So some of my peers, though they have very childish questions, but एक बड़ी ऑब्वियस से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक आर्मी के सोल्जर या वेटरन से पूछने का मन करता है, बट वी नेवर डेयर टू आस्क सच क्वेश्चंस. हाउ मेनी टेररिस्ट यू हैव एनकाउंटर्ड? This actually, let me clarify. Fighting terrorists is not our main job. Our main job is to fight the external enemies of the country. Okay. But due to circumstances, आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ता है. और हम तो ये मानते हैं कि जो भी कोई टेररिस्ट या मिलिटेंट बोलो या इंसर्जेंट बोलो, ये अपनी कंट्री के लोग हैं जो किसी तरीके से उनका जो है गलत डायरेक्शन में वो चले गए हैं. तो डायरेक्टली आई कैन नॉट टेल यू कि भी मैंने कितने लोगों का मतलब कि, बट यस एज आई एम ए इन्फेंट्री मैन, तो हमारे कई बार एनकाउंटर्स या ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पर मोर देन 50 उनके साथ उनका सामना करना पड़ा. नहीं, मैं ये इसका जवाब तो दे ही नहीं सकता हूँ कि ये दिस इज नॉट, नहीं 50 की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. खैर, ओके. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट वे. एंड इट इज़, देखिए ये फिर मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली आर्मी को लोग समझते नहीं हैं. हम लोगों को, मैंने ब्रिगेड कमांड किया है, ब्रिगेड जिसमें कि 4 बटालियंस होती हैं या 4 या 5 हज़ार सोल्जर्स होते हैं. तो मैं नॉर्थ ईस्ट में कमांड कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटी था. तो हमारी एफर्ट ये रहती थी कि हम इनको
प्यार से सरेंडर करा दें, नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएं, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारी ये एफर्ट रहती है। Right. हमारी एफर्ट ये नहीं रहती है कि मारना क्यों है। लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ फॉर एनीवन इज नॉट ए गुड थिंग। Right. तो हम नहीं ये चाहते थे। बाद में मैं आई वाज जनरल ऑफिसर कमांडिंग, तो उसमें भी हमने ऑलमोस्ट हमारी ये कोशिश रहती थी कि लोग आ जाएं, सरेंडर कर लें, उनको जिंदा पकड़ लिया जाए, उनको ना मारा जाए, ये हमारी कोशिश रहती थी। तो दैट इज द थ्रस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। Winning hearts and minds. Winning hearts and minds is our campaign slogan when we go into such areas. और बाद में अगर मजबूरी पड़ेगी तो फिर तो करना ही पड़ता है, वो तो सही बात उसका है। कोई वो नहीं है, Definitely. उस पर कोई हमारे हाथ फिर बंधे हुए नहीं है, किसी ने हमारे हाथ नहीं बांधे हैं। Right. और So चूड़ियाँ as नहीं sir पहनी हैं। mentioned कि आर्मी का काम खाली फाइट्स वगैरह नहीं होता, it's about keeping the peace, keeping the the major humbleness among the people, sympathy. एंड सबकी लाइफ प्रेशस होती है, हर किसी को छोटे से बड़े तक सबने हार्डशिप फेस की होती है। ऑब्वियसली किसी के बहकावे में आके, किसी के बातें सुन के लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, पर आई गेस सबको एक मौका मिलना चाहिए। Definitely. और आर्मी वो मौका सबको प्रोवाइड करती है। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ओवर हियर सर। एनी फीडबैक यू वांट टू गिव? No, thank you so much. It was very nice, and I would love to interact with you more in future. Right sir. Thank you so Any much. last message for the people over here, for the viewers? I'd only say that love your country, and India is a great country, democracy, vibrancy, cultural diversity. You have everything here. So love your country and Jai Hind. Jai Hind sir. Thank you so much sir. It's great talking Thank to you. you.